जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। 3 डिमांड्स। तो कल हम इतना तो लिख चुके थे ना, इतना हमारा हो गया था कि शफी कौन कौन होगा। अवंतिका, अवंतिका बताओ बेटा शफी कौन होंगे। तीनों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। 3 डिमांड्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। राइट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट्स मीन सिंपली if you want to claim the right of preemption, you will have to fulfill certain kinds of formalities. Correct? If you want to claim the right of preemption over the property of others, you will have to follow certain formalities. So what are the formalities? I told you already. The plaintiff must go with these 3 demands. The plaintiff must go with these 3 demands. The first demand is called talab a muwasibat. The name is quite complicated, but yes, it is very important demand. First demand is that is called talab a muwasibat. I hope I have explained you the meaning of that. Na? Once you came to know, as soon as you came to know that the property is sold, immediately you will have to respond. It shows the conduct of the plaintiff, या फिर preemptor. यानी preemptor का conduct कैसा था? As soon as he heard about it that the property is sold, he immediately responded. अच्छा, तलब ए मुवासिबत वो करेगा किससे? ये डिमांड वो करेगा किससे? ऑब्वियसली अभी तो उसको परचेजर के बारे में शायद नहीं पता होगा, वो सेलर से बोलेगा। करेक्ट? तो वो सेलर से बोलेगा। तो दिस डिमांड इज द वेरी इमीडिएट डिमांड which should come immediately after the property is sold. है ना? मैंने बोला है property, when the property has not been completely sold out, you cannot give this kind of demand. तो पहली डिमांड समझ आ गई? ठीक है, इस पे थोड़ा सा नोट डाउन करो अगर आप चाहते हैं। थोड़ा सा डिमांड्स पर हम नोट डाउन करेंगे कि कैसे कौन कौन होगा, कैसे डिमांड्स करेंगे। ठीक है, शुड वी गो फॉर दैट? लिखिए तलब ए मुवासिबत, इसी पर लिखो बेटा हेडिंग डाल के। तलब ए मुवासिबत इज द इमीडिएट रिस्पॉन्स लिखना, रिस्पॉन्ड नहीं, इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द preemptor, immediate response of the preemptor to claim this right, ठीक है, to claim this right. any unexplainable यानी any unreasonable delay लिखो, any unreasonable delay may extinguish this demand. Any unreasonable delay may extinguish this right. ठीक है, आगे लिखिए स्टूडेंट्स, लिखिए this demand shows the intention for claiming the right of preemption. Full stop. आगे स्टूडेंट लिखिए on receiving the information, right of preemption, claiming the right of preemption. आगे नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, on receiving the information of sale, on receiving the information of the sale, the preemptor must assert his claim immediately
must assert his claim immediately. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। और इसका लिटरल मीनिंग मैंने बता दिया था, मुवासिबत मतलब जम्प्ड अपॉन, है ना गौरव, मुवासिबत मतलब जम्प्ड अपॉन। और एक बात और भी है कि इसमें विटनेसेस की जरूरत नहीं होती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहो तो लिख सकते हो कि इसमें से कौन सी डिमांड है तीनों में से जिसमें विटनेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यू विल गो विद द फर्स्ट डिमांड। ठीक है, तलब मुवासिबत को फर्स्ट डिमांड भी कहते हैं, आप चाहो तो इसको ऐसे भी नोटेड कर सकते हो। ठीक है, चलो कम टू द सेकंड, दैट इज तलब ए इशाद। नोट डाउन करिए, तलब ए इशाद। ठीक है, तलब ए इशाद। व्हाट डू यू मीन बाय तलब ए इशाद, क्या मतलब है? इसमें लिखिए दिस डिमांड is to be done, this demand is to be done in the presence of witness, in the presence of witness to the seller or the purchaser, to the seller or the purchaser or both of them, to the seller, purchaser or both of them, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट क्या हो गया, दैट द सेकेंड डिमांड्स विच आई एम डिस्कसिंग हियर, दैट इज तलब ए इशाद। व्हाट वी नीड स्टूडेंट, Avantika, what we actually need, we need the presence of witness, so you will have to mention here presence of witness की जैसे ही बात आती है तो स्टूडेंट 2 witnesses जरूरी है। अब तक हमने जहां जहां witnesses की रिक्वायरमेंट पड़ी, we usually believe with 2 witnesses, right? क्योंकि कभी कभी एक witness अनअवेलेबल हो सकता है, biased हो सकता है, but witnesses ठीक है। चलो आगे आ जाओ, तो किससे करोगे प्रेजेंस डिमांड, ये वाला सेलर से भी कर सकते हो, परचेजर से भी कर सकते हो। अच्छा एक चीज ये है, एक बात बताओ मुझे, अगर कोई माइनर है तो क्या माइनर प्रियम्प्टर हो सकता है या नहीं? प्रियम्प्टर हो सकता है कि नहीं? जितेन बताओ, गौरव, क्या एक माइनर राइट टू प्रियम्पशन क्लेम कर सकता है ये कह के कि मैं शरीक हूं, को ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हूं? आंसर इज यस। ठीक है, लेकिन कैसे करेगा, किसके थ्रू करेगा? गार्जियन। वेरी गुड, तो आप चाहो तो इसमें लिखिएगा इन केस ऑफ माइनर, वेरी गुड जितेन, इन केस ऑफ माइनर थ्रू द गार्जियन, इन केस ऑफ माइनर थ्रू द गार्जियन। ऑल राइट, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द थर्ड डिमांड, दैट इज कॉल्ड तलब ए, या ई से या ए से जो भी लिख रहे हो आप, ए तमलीक। ठीक है, अब तमलीक का मैंने मतलब बताया था कल आपको, दैट मीन्स कंफर्मेशन, राइट रोमी, कंफर्मेशन। चल इसके बारे में 2 लाइनें लिखो, लिखिए दिस इज द लास्ट initiative toward the claim of preemption. ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? It is initiated by presenting a civil suit which is confirmed through the court decree, all right,
गौरव, हमने कल की क्लास में शायद ये चीज पढ़ी थी ना, जितेन, अवंतिका, रोमी, कि ये जो राइट है प्रियम्पशन का, ये कैसा राइट है? इट इज वेरी वेरी पक्का, वीक, स्ट्रांग तो नहीं ना? चलो, वीक राइट है। दूसरी बात है, क्या ये राइट इन रैम है या पर्सोनम है? इसके बारे में थोड़ा मुझे बता दो। राइट इन रैम है या राइट इन पर्सोनम है? अवंतिका, अवंतिका बेटा थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, 2 पॉइंट बताओ इस पे, कि ये जो राइट ऑफ प्रियम्पशन है ये किस तरीके का राइट है? ये तो मेरे को समझ आ गया, मुझे बताओ वेदर इट इज राइट इन रैम और इट इज राइट इन पर्सोनम। हाँ, आप बता रहे थे रोमी, क्या कह रहे थे? मुवासिबत की स्टेज तक, यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि मैम जब तक प्लेंटिफ इस स्टेज तक होता है तब तक ये क्या होता है? राइट इन पर्सोनम होता है। और जैसे ही ये स्टेज क्रॉस कर जाती है, सेकेंड स्टेज आती है, थर्ड स्टेज आती है, यहाँ पर वो ओके, ये आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। हाँ जितेन बताओ, करेक्शन करोगे? अच्छा जितेन बताओ, रोमी का आंसर सही है क्या? वो कह रहा है कि जब तक वो फर्स्ट डिमांड तक रहता है तब तक राइट इन पर्सोनम रहता है। वंस द सेकंड डिमांड इज गोइंग टू बी स्टार्टेड इट बिकम्स राइट इन रैम, यानी राइट अगेंस्ट द यूनिवर्स। राइट इन रैम का मतलब अगेंस्ट द यूनिवर्स। अच्छा गौरव अग्रीड है, बट आई एम नॉट अग्रीड, आई थिंक दैट इट इज रॉन्ग। You know why it is wrong? I told you already, unless and until this right is confirmed by the court decree, it will remain and remain as the right in personam. अभी कमजोर राइट है, अभी कंफर्म थोड़ी हुआ है, अभी सिर्फ आपको ये राइट मिला है सिर्फ और सिर्फ सेलर के अगेंस्ट। सेलर के अगेंस्ट आपका राइट है, और जब तक आपका राइट रहेगा, जब तक कि ये आपको कोर्ट तक पहुंचता है, यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स अभी इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने कह दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पर प्रियम्प्टर का राइट है, मिस्टर बी का राइट है, और यहाँ पर सेलर को और परचेजर को बोला, ये मिस्टर सेलर होंगे और ये परचेजर था, इन दोनों से कहा जाओ ये प्रॉपर्टी इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे ही कोर्ट के जजमेंट में ये लिखा हुआ था और उसमें डिक्री पास हो गई। डिक्री में लिखा है, डिक्री भी आप जानते होंगे 2 स्टेजेस होते हैं डिक्री के ना, एक होती है प्रिलिमिनरी डिक्री और एक फाइनल डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री में हम राइट्स को डिसाइड कर देते हैं, बट स्टिल समथिंग नीड्स टू बी डन, एंड व्हाट नीड्स टू बी डन? दैट इज द फॉर्मेलिटीज थ्रू मिस्टर ए और सी टू बी डन, यानी जो फॉर्मेलिटीज इनको करनी है करो, इनके पास ये प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए। जैसे ही फाइनल डिक्री एडजुडिकेट हो गई, अब बन गया ये इनका राइट इन रैम। अब ये प्रॉपर्टी इनकी है, इस प्रॉपर्टी पर इनका राइट अगेंस्ट यूनिवर्स है। Nobody can claim this property as a right, कोई नहीं आ सकता, सबके अगेंस्ट प्रॉपर्टी किसकी है? मिस्टर बी की है, ना ये ना कोई और। लेकिन जब तक कंफर्म नहीं होती तब तक ये किसका ऐसा राइट था? इनका राइट सिर्फ और सिर्फ इनके अगेंस्ट था, ना तो इनके एलार्स और ना ही इनके एलार्स को कोई पोजीशन मिली होती है। ठीक है अवंतिका, समझ आ रहा है बेटा? अवंतिका आंसर करो बेटा। गौरव, होपफुली नाउ यू अंडरस्टैंड दैट कहाँ तक रोमी गलत था। मतलब थोड़ा गलत आप ये हो कि देखो, जब तक आप तीसरी डिमांड भी क्यों ना कर दो, भले ही आपने थर्ड डिमांड कर दी हो, डिमांड मतलब आपने सूट फाइल कर दिया हो, तब भी अभी ये राइट इन रैम नहीं बना। राइट इन रैम बनेगा ओनली। Subscribe for more content.